last class we were discussing about the construction and the working of induction motor. We have also given the concept of slip. Then we have also derived that the induced EMF so produced in any phase whose RMS value is given as 4.44 F n phase pi p. Is it clear? This we have derived it also. Okay, and this was similar to that of the transformer. I have told you in transformer also the same type of equation is obtained. Then we have also given the concept of the slip. We have also find out the relative velocity of the rotor magnetic field. Okay, that was same as that of the synchronous with respect to stator. Okay, so the speed of rotating field of stator as well as rotor is same as, which is what? Synchronous speed ns, which is given by 120 f upon p. We have also derived that in case of the rotor current so produced have a frequency of how much? Fr given as S into Fs. Clear? This we have already given you. Okay, and now today we will further learn about the details of this. The torque production I have already explained you how torque is produced. I have already explained you that torque is produced whenever there is an interaction between stator magnetic field and rotor magnetic field. Is it clear? So here also the same thing is there, that stator produces a rotating magnetic field. This cuts the rotor conductors. Okay, and thereby induced EMF is produced. Rotor being short circuited, therefore current will flow. Is it clear? And this current will produce a rotor MMF, and thereby now stator MMF and rotor MMF interact each other and they produces a torque, and due to which rotor starts rotating. Okay, and it will always rotate at a speed less than synchronous speed, and it will also rotate in the same direction as that of the रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. जिस दिशा में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसी दिशा में हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा. अरे समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, this we have also discussed this. Now we have also discussed the induced EMF. Okay, what is the frequency? Frequency is in the rotor. The frequency of the rotor current is how much? S into Fs, which I have already. Fs is what? What is Fs? Supply frequency. This is clear. Then now we'll talk about the induced EMF. I have already explained you that what is the induced EMF? Induced EMF is the EMF produced in the rotor. Is it clear? So the voltage induced in the rotor at slip S is given by S into ER. S into ER. Now what is this ER? Now see, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है रोटर करंट की वो भी स्लिप पे डिपेंड है. इज इट क्लियर? अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है भाई, करंट किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? इंड्यूस ईएमएफ के कारण. इज इट क्लियर? तो इंड्यूस ईएमएफ भी जो है रोटर में जो प्रोड्यूस होता है वो भी स्लिप पे डिपेंडेंट है. ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय द इंड्यूस ईएमएफ. द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ एट एनी स्लिप इज गिवन बाय एस इनटू ईआर. एस इनटू ईआर. ठीक है, व्हाट इज ईआर? Induced EMF at standstill condition. Induced EMF at standstill condition. अब induced EMF standstill condition में स्लिप कितनी होगी? Standstill का मतलब समझते हो? Stationary. Standstill mean is stationary. So initially rotor is in which form? Initially जो रोटर होता है वो किस अवस्था में होता है? Stationary. तो स्लिप कितनी होती है? 1. Sure. So this is when I make S is equal to 1, I will get ERS is equal to ER. So what is this ER? This is ER, the induced EMF produced in the rotor at standstill condition. अब जैसे मोटर पिकअप करेगी स्पीड, गाड़ी पिकअप करेगी, तो अब क्या होगा? अब आपका जो ER है वो ER ना रहकर कितना हो जाएगा? S टाइम्स ER. यानी मोटर किस स्पीड से रोटेट कर रही है उस स्पीड से हम क्या निकालेंगे? S. स्लिप को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ टू डिफाइन स्लिप? बताओ.
difference between the synchronous speed and the rotor speed with respect to, is it clear? तो ये induced EMF भी आपके slip पर dependent है. This is clear? So ER is the voltage induced in the rotor at standstill condition. अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. Now this we have already done, that relative speed of the rotor magnetic field with respect to stator. A stator is stationary, its speed is 0. Is it clear? और total speed कितनी होगी? Speed of the rotor field with respect to stator will be rotor speed plus speed of the rotor field, and rotor speed is how much? As per the slip definition, slip की definition क्या होती है? ns minus nr upon ns. तो इससे आप nr निकाल सकते हैं, कितना होगा? 1 minus s into 1. And what is the rotor field speed? S into ns. So relative, it will come out to be ns. So with respect to stator, the rotor is also rotating at a speed of synchronous. अरे समझ में आया कि नहीं आया? और अगर दोनों का, अगर मैं कहूं कि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है, उसके रेस्पेक्ट में रोटर मैग्नेटिक फील्ड की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 0. दैट इज 0. इसी प्रकार रोटर मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी? 0. सो लाइकवाइज सो मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम फ्रॉम दिस कांसेप्ट. हम इस कांसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, यार क्या हमें एक ही चीज है, एनएस चाहिए, ठीक है. लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच? 0. एनएस माइनस एनएस विल बी इक्वल टू 0. तो ये चीज हमें ध्यान रखना. अब हम जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे, हैव यू रेड ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे, ठीक है. तो हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, इतना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद हमने एनालिसिस करना था. हमें क्या करना था कि भाई मैं इतना वोल्टेज लगा दे तो कितना करंट आएगा. इज इट क्लियर? और तो फिर सर्किट चाहिए मुझे. क्या चाहिए? सर्किट चाहिए. सर्किट मींस सर्किट पैरामीटर्स. सर्किट मींस व्हाट? सर्किट पैरामीटर्स. सर्किट पैरामीटर्स क्या होंगे? सोर्स तो हो गए होगा, प्लस उसमें रेजिस्टेंस कितना है, उसमें इंडक्टेंस कितना है, क्या उसमें कैपेसिटेंस भी है, क्या किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज में है या पैरेलल में, कौन कहां कनेक्टेड है. इसका मतलब मुझे उसकी मैथमेटिक्स करने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए मुझे उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए. क्या चाहिए? इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट. इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, ताकि मैं जब भी कभी मुझे जरूरत पड़े मैं उसकी थ्योरेटिकल डिजाइन कर सकूं. आपकी तरह थोड़ी है कि सर एक इंडक्शन मशीन बनाना, ठीक है सर, कॉपर लिया ना इतना 10 किलो, एक से थोड़ा लोहा भी लिया ना, थोड़ी स्टैंपिंग्स भी लिया ना, ठीक है, ज्वाइन कर दी, ठीक है, वाइंडिंग कर दी, चालू करो सर खटका. सर ने जैसे खटका ऑन किया एकदम आग लग गई. और सर यूं करना, इस बार 20 किलो लिया ना तांबा. तो दिस इज नॉट एन गुड वे. ये कोई ये अनाड़ियों का तरीका. हमें साइंटिफिक वे में करना. तो साइंटिफिक वे पहले कहता है कि चीजों की मैथमेटिकल मॉडलिंग करो. क्या करो? चीजों की मैथमेटिकल मॉडलिंग करो. मैथमेटिकल मॉडलिंग मींस उसका सर्किट बनाना. मैथमेटिकल मॉडलिंग मींस उसका सर्किट बनाना कि मेरा इनपुट इतना होगा, ठीक है, तो अंदर क्या पैरामीटर होंगे, रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा. पहले ये पता करना क्या क्या होंगे. इज इट क्लियर? तो अब हमारा प्रयास है टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर. इंडक्शन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर. ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर का किया था कि नहीं किया था, ठीक है. क्या क्या आए थे ट्रांसफार्मर? प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है. फिर बीच में एक कॉइल जो म्यूचुअल इंडक्शन करती है. इज इट क्लियर? अच्छा, बीच में एक और पहले शंट ब्रांच आई थी जिसके दो पैरामीटर होते हैं, एक्सएम और आरई. आरएम कह तो एक्सएम और आरई, ठीक है. एक कोर लॉस कंपोनेंट के कारण आरई आता है रेजिस्टेंस, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या आता है? एक्सएम. अरे आता है कि नहीं आता है, ठीक है. फिर एक सेकेंडरी साइड में भी कॉइल बनाते हैं और उसके साथ भी एक रजिस्टर और एक लीकेज इंडक्टेंस हम उसके साथ सीरीज में लगाते हैं. अरे ये इक्विवेलेंट सर्किट याद है सबको. फिर उसका अप्रोक्सीमेट भी करते हैं. शंट ब्रांच बहुत कम होता, हटा दो, ठीक है. फिर और अप्रोक्सीमेट करते हैं कि और यूं करो कि सारे प्राइमरी साइड ले आओ.
तो रेफर टू प्राइमरी, तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश, और रेफर टू सेकेंडरी, कोई कहता नहीं सेकेंडरी के साथ ले जाओ, तो वहां पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है, R1 डैश प्लस R2। अरे ये किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ खेल हम यहां पर भी करेंगे, इज इट क्लियर। तो भाई उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, स्टेटर में क्या होता है, वाइंडिंग्स, वाइंडिंग किसमें होती है, स्टैंपिंग्स में, इंसर्ट होती है कि नहीं होती है, कोर होती है, कोर, इज इट क्लियर। तो हमने पाया कि इसमें दो प्रकार के, व्हेन द रोटर इज ओपन सर्किटेड इट बिहेव एग्जैक्टली लाइक अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है ओपन सर्किटेड रोटर और एक होता है ब्लॉक्ड रोटर। क्या होता है, ब्लॉक रोटर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में तो एक ही वर्ड था, क्या था, ओपन। ट्रांसफॉर्मर में क्या था, ओपन। ओपन का क्या मतलब था, सेकेंडरी इज ओपन। ट्रांसफॉर्मर ओपन का क्या मतलब था, सेकेंडरी इज ओपन, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेकेंड। अब यहां पर हमारा तो रोटर क्या है, शॉर्ट सर्किट है। अरे है क्या, नहीं है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। हम मानते हैं लेट अस से इट इज ओपन, हमने एंड रिंग्स नहीं लगाई तो वो क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो ओपन होते वक्त हमारा ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक दिस, दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर when the rotor is open circuit, when rotor is open circuited तो क्या लिखा है, it behave exactly like a ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, R1 R2, R1 होता है, उसके साथ XL1 होता है, फिर XM और RE होती है, फिर सेकेंडरी साइड क्या होता है, R2 और XL2। अरे होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, स्टेटर रेजिस्टेंस क्या है, RS मींस स्टेटर रेजिस्टेंस। प्राइमरी साइड क्या हो गया हमारा, स्टेटर, और सेकेंडरी साइड क्या होगा हमारा, रोटर, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, XLS क्या है, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस। चूंकि उसमें स्टैंपिंग्स भी है तो वो करंट फ्लो होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड उसको ही लिंक करना चाहिए, पूरा दूसरे को भी लिंक करना चाहिए, लेकिन कुछ अपने आप में ही रहता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, लीकेज इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, लीकेज रिएक्टेंस। तो दिस इज द XLS योर लीकेज, ठीक है। और चूंकि सारा खेल किसके कारण है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। और उसमें कोर लॉस भी कंपोनेंट है, तो RCWF इज व्हाट, कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस रेजिस्टेंस। अब इसमें ट्रांसफॉर्मर में हम सिर्फ RE जिसको कहते थे उसमें सिर्फ क्या कंसीडर करते थे, कोर लॉस कंपोनेंट। कोर में भी करंट फ्लो होता था, उसके कारण लॉस होता था, ठीक है। लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आगे हमारे काम में नहीं। इज इट क्लियर। अब तुम पढ़ाई करके चले जाओ, यहां से पढ़ाई करके चले जाओ, कहीं नौकरी लग जाओ और कहो साहब मैं तो अपने बलबूते पे आऊं, CTA का क्या रोल था, ई डिपार्टमेंट का क्या रोल था, तो तुम हमारे लिए क्या हुए, लॉस ही हुए। इज इट क्लियर। और वहां तुम सब जाके कहो कि नो यस आई एम बिकॉज ऑफ CTA, ठीक है। तो हमारे लिए तो एक एक्टिव पॉइंट हुआ है। और यार देखा हमारा एल्यूमिनी जाके वहां पे ये कह रहा है, जैसे कल ही मैं गवर्नमेंट जयपुर गया हुआ था, तो वहां पे जैसे सेक्रेटरीट में एंटर हुआ, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड में कल, तो पीछे से एक आवाज आई, अच्छा वो तो गवर्नमेंट का है, वहां तो IAS RS और ये सब बैठते हैं, ठीक है। पीछे से आया, गुरुजी प्रणाम। मैंने सोचा किसी को कह रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं मेरे चलने लगा, फिर वापस आवाज आई, मैंने पीछे देखा, मैंने कहा यार मुझे यहाँ पे कौन पुकार रहा है। CTA में तो समझ में आता है, मिड टर्म प्रैक्टिकल के कारण लोग कहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का, ठीक है। पीछे देखा तो मैंने कहा कौन है यार ये लड़का, तो मालूम हुआ कि 2016 का बैच का एक हमारा स्टूडेंट था, वो खड़ा था, वो राजस्थान अकाउंट सर्विस में उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और बड़े सम्मान के साथ, अरे सर आप आए और मैंने आपको दूर से ही पहचान लिया था और मैं मेरे रूम में चलिए और ये चलिए। तो वो आज भी मान रहा, फिर 2-3 से परिचय करवाया कि सर आज जो कुछ हूं मैं, हालांकि नहीं है, वो अपनी मेहनत के कारण है, इज इट क्लियर। लेकिन फिर भी भाव दिए कि सर आज हमें इलेक्ट्रिकल पढ़ाई थी, ये थी, तो हमारे लिए गौरवान्वित महसूस हुआ, इज इट क्लियर, ठीक है। तो जो हमारे काम के नहीं है वो क्या, अगर वो मुझे नहीं पहचानता तो मेरे तो लॉस। ये सेक्रेटरीट में खड़ा हूं, सामने आदमी देख रहा और कोई वो पहचान ही ना, कौन हो सर आप, अच्छा 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 अच्छा, वो
कुछ कुछ शक्ल याद आ रही है सर, आप कुछ बोलते तो थे शायद, ऐसा एक व्यक्ति बोलता तो था कुछ क्लास में। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो दुनिया है तो, लेकिन यहां पर भी हम भाई ऐसे ही सवाल जो हमारे काम के नहीं है, भले कोर कहे कि नहीं मुझे चाहिए करंट, मेरे में कंडक्शन पावर भी है, मैं तो करंट तुम्हारे काम की नहीं तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो कोर लॉस को, मगर इसमें एक और हमने, ये सब इक्विवेलेंट है, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है, तो हमने एक और लॉस इसमें लिया है। कौन सा लिया? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। आपके ये जो रोटर भी घूम रहा है, ठीक है, तो घूमने के कारण भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके कारण क्या है, लॉस हो रहा है। तो दैट वी हैव कंसीडर्ड इट कोर लॉस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस रेजिस्टेंस। एक्सएम क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। क्या है? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। बिना एक्सएम के, बिना मैग्नेटिक फील्ड के क्या रोटर घूम सकता था? अरे घूम सकता क्या? मैग्नेटिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस हुआ। कौन सा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हमने एक इंडक्टेंस से शो कर दिया, एक्सएम से। किससे शो किया? एक्सएम से। फिर वही एक ट्रांसफार्मर की कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, जो कोर को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, रोटर की सेकेंडरी, रोटर एक्टिंग एज ए सेकेंडरी कॉइल। नाउ रोटर हैज आल्सो rotor resistance and rotor has also leakage reactance. So when it is open circuited, the equivalent circuit of an induction motor looks like this. इसमें कोई दिक्कत है समझने में? No problem. Is it clear? Now next come. अब हम धीरे धीरे देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो मालूम है हमारा रोटर क्या है, क्या है? शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो हम वो शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट लाते हैं, आरएस, एक्सएलएस, भाई आरसीएफ, स्टेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सएम, ठीक है। यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ? ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इन द, यहां सप्लाई लगाई आपने, यहां क्या लगाई? सप्लाई। सप्लाई मींस वीएस, सप्लाई मींस वीएस। सो what will be here? VS. What will be here? VS. VS means, अच्छा ये सारा मैं इक्विवेलेंट सर्किट है ना पर फेज कर रहा हूं, ये बात और ध्यान रख लेना। इज इट क्लियर? फॉर सिंप्लिसिटी। बाकी हमारी मोटर क्या है? मोटर क्या है? 3 फेज। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारी वाइंडिंग्स और सप्लाई सारी क्या बैलेंस्ड है। क्या है? सारी बैलेंस्ड है, ठीक है। इंजीनियरिंग में इसी की स्किल्स है कि जैसा आर फेज में वैसा का वैसा वाई फेज में, और जैसा वाई फेज में वैसा का वैसा बी फेज में। इसका मतलब तीनों में सब कुछ बराबर है। इज इट क्लियर? आर का भी इतना ही रेजिस्टेंस है, वाई का भी इतना रेजिस्टेंस है, और बी का ही इतना ही रेजिस्टेंस है। आर का भी इतना ही लीकेज इंडक्टेंस है, वाई का भी इतना इंडक्टेंस है, और बी का भी इतना ही लीकेज इंडक्टेंस है। तो हमारा जो एनालिसिस है वो क्या रहता है? पर फेज। दिस इज व्हेन आई स्पीक, इफ यू हैव नोटिस व्हाट आई हैव रिटन टू द आरएस, पढ़िए क्या लिखा हुआ है? पर फेज स्टेटर रेजिस्टेंस। आपको तो प्रश्न आपको पूछना चाहिए था, सर बातें तो 3 फेज की कर रहे हो और काम पर फेज कर रहे हो। तो इसका रीजन है, ये मेरा सब सिंप्लिसिटी है। किसकी? मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। किसके लिए? ठीक है, आगे चल के जो भी पावर निकलेगा मैं उसको क्या कर दूंगा? 3 टाइम्स। क्या कर दूंगा? 3 टाइम्स। कि पर फेज के लिए इतना है तो 3 फेज के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय। अरे समझ में आया क्या? ये के न्यूमेरिकल में करना है। हम सारा कैलकुलेट किसके लिए करेंगे? पर फेज। और बाद में लास्ट में वो पूछेगा टोटल कितनी पावर निकाल दी, पर फेज निकाल दी, तो 3 फेज की कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? और जो हम मान लो मैं आपको कहता 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज, अब देखिए न्यूमेरिकल पे ध्यान देना। आपके आएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर supplied with 440 volt 50 hertz। ये समझ में आया? ये न्यूमेरिकल होगा, आपके आएंगे न्यूमेरिकल। अब यहां ध्यान देने ये बात है कि ये क्या है 440 वोल्ट। ये तो समझ में आ गया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, पहली बात तो। इज इट क्लियर? तो 440 वोल्ट क्या है? मैंने हमेशा बताया ये लाइन वोल्टेज है। ये क्या है? लाइन वोल्टेज। 3 फेज है तो 3 फेज होंगे। कौन कौन से? आर, वाई और बी।
ठीक है। और लाइन वोल्टेज किसके बीच में होता है? लाइन वोल्टेज किसके बीच में होता है? दो लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच, या तो आर वाई के बीच में, या वाई बी के बीच में, या बी आर के बीच में। अरे इन्हीं के बीच में होगा। तो ये जो लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं कहा हुआ है तो ये क्या मानेंगे हम? लाइन वोल्टेज। ठीक है। आगे स्टार कनेक्टेड, या ऐसे भी दे सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, वाई कनेक्टेड। वाई मीन्स, अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हमें एनालिसिस करना है, वो क्या करना है? पर फेज। क्या करना है? और वोल्टेज क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? लाइन वोल्टेज। तो जब हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे पर फेज, तो इस लाइन वोल्टेज को कन्वर्ट करेंगे किसमें? पर फेज में। तो पर फेज क्या करना है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वाइंडिंग की कॉन्फ़िगरेशन किसमें? मैंने यहां पर क्या दे रखी है? स्टार कनेक्टेड। तो हमें याद रखना है कि स्टार कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू हाउ मच? √3 टाइम्स द फेज वोल्टेज। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जो फेज वोल्टेज है, पर फेज वोल्टेज इज नथिंग बट VL अपॉन। अरे समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है। तो ये कितना हो गया? निकालिए कितना आता है। निकालिए, कैलकुलेटर शुड बी विद यू। कितना आया है? कितना आया? 254। ओके। और 400 होता तो कितना आता? 230। इज इट क्लियर? सो दैट इज वाई आपके जितने भी ट्रांसफॉर्मर हैं वो डिजाइन होते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज कितने? 400। कितने? तो आपके घर पे कौन सी सप्लाई आ रही है? आजकल तो लोग सब एसी वाले हो गए हैं, ठीक है, इसलिए आजकल 3 फेज कनेक्शन। लेकिन पहले जो भी थे वो सब किस पे थे? सिंगल फेज पे। किस पे थे? एक ही फेज आ रहा था। इज इट क्लियर? आर और न्यूट्रल, या वाई और न्यूट्रल, या बी और न्यूट्रल। ठीक है। तो सिंगल फेज वोल्टेज कितना होगा? हमारे घर पे कितना आ रहा है? 230। अब ये 230 तो वहां पे ट्रांसफॉर्मर के एंड पे, आपके घर पे आते आते लॉस होगा कि नहीं होगा? इज इट क्लियर? इसलिए आपके जितने भी डिवाइस हैं, आप चाहे मिक्सी खरीदने जाओ, या आप ट्यूबलाइट खरीदने जाओ, या बल्ब खरीदने जाओ, जितने भी घर के हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं जो आपके सिंगल फेज पे चलते हैं, उनकी रेटिंग हमेशा कितनी होती है? मैक्सिमम वोल्टेज कितना लिखा था? 220 वोल्ट। कितना लिखा होता है? 220 वोल्ट। कितना लिखा होता है? ये मान करके भाई 10 वोल्ट आपके ड्रॉप हो सकता है। मान लो दूर घर है, ट्रांसफॉर्मर यहाँ लगा हुआ और आपका घर वहां पे लगा हुआ यूनिवर्सिटी के गेट के पास, उधर पीछे की साइड में, तो आते आते ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? तो मैक्सिमम ड्रॉप मान लिया कितना? 10 वोल्ट। ठीक है। ये ड्रॉप भी बड़ा खतरनाक है। इज इट क्लियर? ये ड्रॉप होना नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? जितना ज्यादा ड्रॉप होगा उतना आपके इक्विपमेंट पे प्रेशर पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब हमारे मान लो 220 वोल्ट आ रहा है। इज इट क्लियर? तो करंट भी वो उतनी ड्रॉ करेगा, रेटेड करंट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। मान लो रेटेड करंट उसकी 1 एम्पियर है। कितनी है? 1 एम्पियर। तो वो 220 वॉट पावर आपके कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। अब मान लो वोल्टेज ही आपका आया 180। कितना आया? तो वो क्या करेगा? उसको रन करने के लिए उतनी पावर तो चाहिए। इज इट क्लियर? अब आपको मान लो 4 रोटी खाता है, मान लो सनाट रोजाना कितनी खाता है? 4 रोटी। एक दिन मम्मी ने कहा आज मैं 2 रोटी दूंगा और 1 कटोरी सब्जी। 4 रोटी और 1 कटोरी सब्जी। तो ये क्या करेगा फिर? 2 रोटी और उतनी कटोरी सब्जी दे दी, तो ये क्या करेगा? कुछ एक्स्ट्रा आइटम लाएगा बाजार से। आज ठीक है, पाव ले आता हूं, बर्गर ले आता हूं। इज इट क्लियर? कंपनसेट तो करेगा ना भाई। इसके रूटीन में एल्गोरिथम बना हुआ है, जब तक 4 रोटी तक नहीं आता, 4 रोटी को कैसे करेगा? 2 पाव ले लेगा साथ में, या 6 ब्रेड ले लेगा। इज इट क्लियर? तो ये भी क्या करेगा? आपने वोल्टेज कम दिया, पावर उतनी ही चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये करंट बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? करंट को खींचो। सोर्स तो खूब है अपने पास, करंट को खींचो। अब करंट खींचने से क्या होगा? खींच लो, कोई बात नहीं। ठीक है।
आपकी वाइंडिंग, आपका जो क्रॉस वाइंडिंग जो बनी हुई है, यानी कंडक्टर जो बना हुआ है, उसकी एक कैपेसिटी है, जैसे उसकी एक कैपेसिटी है, उस बियॉन्ड उस कैपेसिटी के बाद आपका तार जलने, इज इट क्लियर? और करंट कैपेसिटी डिसाइड किससे होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना मोटा वायर उतना ज्यादा करंट, जितना पतला वायर उतना कम करंट। आपने पतला वायर लिया 1.5 एम्पियर के, 1 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो गया 2 एम्पियर, तो फिर धीरे धीरे आपको बदबू आएगी और कहीं क्या हुआ, तार जलने की। किसकी आएगी? तार जलने की। और ये कैसे हो गया? अभी हाल ही में लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक नौसिखिया व्यक्ति, ठीक है, उसने क्या किया, जो मेन सप्लाई थी वहां लगा दिया मेन पतला वायर। अरे सर, कंपनी वाले ने सर वायर खराब दे दिया सर। और सर ऐसे थोड़ी होता। मैं गया देखने, मैंने कहा यार ये जो मेन सप्लाई से वायर आ रहा है, ये आगे सर्किट में कई जगह जाएगा, तो ये तो मोटा होना चाहिए ना। ये पतले वायर बीच में लगाने के, क्यों? करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। हाँ, तो हमारे को क्या है कि बेसिकली हम डिग्री ले लेते हैं और हमें बेसिक कंसेप्ट ही नहीं मालूम है चीजें क्यों, क्या, किस लिए हो रही है। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये चीजें ही तो, ये अनुभव ही तो आपके काम का है। योर इंपॉर्टेंस इन द मार्केट इज ड्यू टू योर एक्सपीरियंस विच विल क्रिएट अ नॉलेज टू यू। अब जैसे मान लो आपकी स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही है, क्या कारण हो सकता है? या तो वो फ्यूज हो गई, इज इट क्लियर? वो या तो सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक है, आप देख लो वहां पे उसके जहां पॉइंट है वहां पर टेस्टर लगा के देख लिया आपने, सप्लाई तो है, इज इट क्लियर? तो आगे क्यों नहीं जा रही है? ठीक है, तो आप उसको भी स्ट्रीट लाइट को बाहर करके बल्ब से चेक कर सकते हो कि भाई आगे जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहां प्रॉब्लम है? जॉइंट में, सप्लाई और उसके जो स्ट्रीट लाइट के जॉइंट, वहां पे क्या हो गया? कार्बन इकट्ठा हो गया। क्या इकट्ठा हो गया? ये जनरली होता है एल्यूमिनियम वायर में। किसमें होता है? एल्यूमिनियम। कार्बन इकट्ठा हो गया, ठीक है। कार्बन क्या होता है? इंसुलेट, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। जैसे हीट प्रोड्यूस होती है ना एल्यूमिनियम से, तो क्या जनरेट करता है? कार्बन। फिर कार्बन क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट करने का आगे करंट बहता नहीं है, नतीजन ट्यूबलाइट, वो आपकी स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है। और आप नौसिखी हो तो बाहर, अरे सर ये तो खराब हो गई, नहीं ले सर मैं, आपको 300 रुपए लगे, पुरानी खुद रख लेगा और आपके 300-400 रुपए या 1000 रुपए का जो भी है वो चपट है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बेवकूफ नहीं बने, सब्जी वाला बेवकूफ बना सकता है हमें, इज इट क्लियर? दूसरा कोई दुकानदार, कोई साड़ी वाला खरीदने गए या कपड़ा खरीदने गए, टी शर्ट बनाया खरीदने गए, ठीक है, आज टी शर्ट खरीद के लेकर आया, ये कौन सा, ठीक है, कि कौन सी कंपनी का, रीबूक का या किसी का भी लेकर आया हो, ठीक है, सर 3000 रुपीज, और अगले दिन मालूम पड़ा 50% डिस्काउंट। तो बेवकूफ बन गया कि नहीं बन गया ये? ठीक है, आगे मालूम पड़ा कि 75%, एक के साथ एक फ्री ले जाओ, एक के साथ 2 फ्री ले जाओ। तो वो जो आदमी पहला खरीदार होता कितना रोता है, अरे यार मैं तो क्रेज में आ गया और लेकर आ गया यार 3000 की, ये तो 600 रुपए में लेकर आ गया वो टी शर्ट। और 600 रुपए वाले को और दुख होता है जब वो फर्स्ट कॉपी वाला 300 रुपए में लेकर आ जाता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको आगे चल के किसको चलाना है? एक इंडस्ट्री को और मार्केट को चलाना है। तो यू शुड भी कि मार्केट में क्या होता है हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो पहले ये तो देखो कि सही क्या है, इज इट क्लियर? अब वायर कई प्रकार, पंखा है, पंखा खरीदना है, ठीक है, आपके यहाँ पास के इस एड में भी खूब सारे आपको बना के मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे आपको, ठीक है, पंखे। लेकिन एक ये बजाज भी बनाती है, क्रॉम्पटन भी बनाती है, ठीक है, उषा भी बनाती है, तो फिर फर्क क्या है? हाँ? एक आम आदमी क्या होना, सर हवा आती है दोनों से, आने दे हवा आने दे, आ रही हवा, खेल खत्म है, इज इट क्लियर? बस खेल खत्म। आम आदमी तो यही कहेगा, नहीं, फर्क है। जो जितनी भी ये स्टैंडर्ड कंपनी है, दे गो फॉर टेस्टिंग, दे गो फॉर टेस्टिंग मीन्स जो आपका दावा लिखते हैं आप उन पे लिखना कि ये 10,000 टाइम्स अगर आप फुल लोड स्पीड पे चलाएंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसलिए हमारे जो ब्रांडेड कंपनी के पंखे हैं, ये जैसे आपका पंखा लगा हुआ है, ये कब लगाया था? 2005 में। कब लगाया था? आज भी चल रहा है। कितने साल हो गए? मेरी नौकरी के बराबर हो गए,
मैं भी 2005 में ही यहाँ आया था, ठीक है। मैं चल रहा हूं तो पंखे भी चल रहे हैं। इज इट क्लियर? मैं अपनी वाणी से तुम्हें ज्ञान की हवा दे रहा हूं, ये पंखे नेचुरल हवा तुम्हें दे रहे हैं एक प्रकार के डिस्प्ले करके। इज इट क्लियर? तो किस कंपनी के? देखो ऑटम, दैट इज ऑल्सो गुड कंपनी, लिखा हुआ नहीं दिखा ऊपर, ठीक है। तो ब्रांडेड कंपनी है, दे गो फॉर टेस्टिंग, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, कंटिन्यूस आवर टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट, लाइक मोर मेनी मोर टेस्ट। वो उसी का पैसा ले दिए कि हम सारा टेस्ट करके आपको दे रहे। और एक ये वो अनाड़ी में, अरे क्या है सर, एक सिंगल फेज मोटर लाओ, बांधी, 3 फिन्स लगाए, लो 600 रुपए में। राजी यार देखो क्या लूट मची है, क्या मची। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो इसलिए आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज एक्सीलेंट, व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज पुअर, व्हाट इज एवरेज, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपकी मार्केट में वैल्यू। आगे बढ़े तो हम बात करें, अब धीरे धीरे हम ओपन सर्किट वाला रोटर को, अब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं कि यार है क्या, ओपन तो है नहीं, है क्या है, शॉर्ट सर्किट है। चलो हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब शॉर्ट सर्किट आते ही हमें मालूम है ये तो ठीक है, आरएस ठीक है, ये भी स्टेशनरी है, ठीक है, ये आरसीएफ ठीक है, एक्सएम हो गया। इस कॉइल पे ये कितना, स्टेटर इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या है, स्टेटर इंड्यूस ईएमएफ। सप्लाई इज डिफरेंट, माइंड इट, सप्लाई इज डिफरेंट। कुछ लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, अरे यार ईएसबी क्या वो है, नो, वीएस इज द सप्लाई वोल्टेज पर फेज एंड ईएस इज द स्टेटर इंड्यूस ईएमएफ। अरे समझ में आया, ठीक है। अब रोटर साइड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब रोटर साइड में जो इंड्यूस ईएमएफ है, रोटर साइड में जो इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, वो कितना होगा, जो मैंने बताया एस ई आर, क्या होगा, एस ई आर। अगर डिपेंड्स, रोटर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन व्हाट, slip, depends upon slip. At standstill it is ER, and at other slips it is S into ER, depends upon rotor speed. So I have marked this induced EMF as ER. Now resistance is independent of the frequency. एक रजिस्ट्री सर्किट है, प्योर रजिस्ट्री सर्किट है, मैंने उस पर 50 हर्ट्ज की सप्लाई लगाई, 5 ओम का है, 50 हर्ट्ज की मैंने 200 वोल्ट सप्लाई लगाई, कितना करंट बहेगा, 200 डिवाइडेड बाय 5, कितना हुआ, कितना हुआ, 40 एम्पियर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने उसी रजिस्टर पर 200 वोल्ट की सप्लाई लगाई, लेकिन इस बार 60 हर्ट्ज दिया, 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज की सप्लाई लगाई, बताइए करंट कितना होगा, कितना होगा? अरे बोलो तो सही कुछ मुख से, सेम 40 एम्पियर। तो क्या कंक्लूजन निकाला, that when a circuit is purely resistive, the frequency has no effect on it, resistance are unaffected by the frequency of the circuit. Is it clear? तो हमारा रोटर रेजिस्टेंस अफेक्टेड होगा क्या, अरे होगा क्या, नहीं होगा, आ रहा है, लेकिन कौन अफेक्ट होगा, इंडक्टिव एलिमेंट, कौन होगा, वो कौन था हमारा, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द रोटर, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द रोटर। वो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, देखो अब हमारा इंडक्टेंस कैसे, इंडक्टेंस इन जर्नल हाउ यू डिफाइन, 2 पाई एफ एल। अरे होता है कि नहीं होता है, एवरीबॉडी एग्रीज। सो नाउ एफ इज नॉट एफ इन रोटर केस, व्हाट इज दिस, क्लियर, एफ इज एस एफ आर, तो एस को बाहर ले लिया, तो हमारा ये स्टैंड स्टिल पे जो इंडक्टेंस है, अरे समझ में आया कि नहीं आया, जो स्टैंड स्टिल पे लीकेज रिएक्टेंस है उसका एस टाइम्स होगा द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द रोटर एट एनी रोटर स्पीड। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सो व्हाट आई हैव इंट्रोड्यूस हियर, एस इनटू XLR, what is XLR,
is the inductance, reactance of the rotor when it is open circuited. When it is open circuited. अरे ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? और रोटर हमारा क्या होता है? शॉर्ट। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है किसका? किसका? रोट इंडक्शन मोटर का पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर। इज इट क्लियर और नॉट? और कोई डाउट? मैं इतनी बार दोहराऊंगा कि आपको इंडक्शन मोटर एकदम जबानी याद हो जाएगी। इसको रटोगे, एग्जाम से एक दिन पढ़ोगे तो उल्टा सीधा लिख के लेकर आ जाओगे ये। लेकिन यदि आपने इसको लॉजिकल फॉर्म में पढ़ा, यहां कहीं इलॉजिक दिख रहा है आपको या रटने वाली कोई चीज दिख रही है क्या? कुछ दिख रही है? ठीक। तो आप क्या है कि कभी मान लो फॉर्मूला भूल भी गए, इमीडिएटली अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, इमीडिएटली यू कैन डिराइव इट कि भाई क्या होगा, स्टेटर साइड आरएस और एक्सएलएस, ठीक है, और एक शंट ब्रांच होगी ट्रांसफार्मर की तरह। क्या होगी वो? You got my point? And there will be shunt branch. Now this shunt branch is contribution by stator. So no need of slip. No need of slip. Simply RCFF and XM. It will have a induced EMF on the stator side also, which is how much? ES. How much? ES. अब सारा खेल किधर है? रोटर की साइड। रोटर हमारी सेकेंडरी साइड की तरह स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या क्या रोटर सेकेंडरी साइड भी क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ क्या होगा? एस ई आर, ठीक है। रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी तो आर आर, और इंडक्टेंस से अफेक्टेड होगा कितना हो जाएगा? एस एक्स आर एफ, where एक्सएल आर एफ इज द इंडक्टेंस द व्हेन द रोटर इज ओपन सर्किटेड, और ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? अब आगे हम मैथमेटिक्स बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट के आधार पर हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे हैं? हम आगे मैथमेटिक्स करेंगे। क्या करेंगे? ये सब किस लिए बनाया? क्या आप एग्जामिनेशन में मार्क्स पा पाए? अरे ये तो बहुत बात की चीज है कि अब यार क्या करें नौजवानों को, ठीक है। तो जिन जिन साइंटिस्टों ने जो जो योगदान दिया उसका कलेक्शन करके भाई तुम्हारा एक कोर्स बना दिया, और कोर्स बढ़ के तुम्हें तो क्या करना है? तुमने कोई अभी इसमें कुछ खोजा क्या? तुम्हें सिर्फ उसको समझना है, जो लॉजिक जिस साइंटिस्ट ने दिया कि इसकी ये मैथमेटिक्स होगी, और उसको पढ़ के अपने मन में उतारना है, दिमाग में उतारना है, हृदय में उतारना है, एग्जामिनेशन पास करना है, डिग्री लेनी है, और फिर ऐसे किसी काम धंधे में अपने आप को लगाना है। अब काम धंधा जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं लोगों को लगता है सर मिस्त्री बना रहे हो क्या, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप एक परफेक्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको शुरुआत मिस्त्रीगिरी से ही शुरू करनी। आप सोचो नहीं सर मैं तो पीछे हाथ खड़े करके खड़ा रहूंगा, तो आपको ही वो लोग डुबा देंगे, और आपका मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन वो बिल्कुल पुअर होगा, और सिस्टम पूरा ही डब्बा बैठ जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर वे में चले तो आपको छोटी से छोटी चीजें जो लेबर भी करता है वो आपको आनी, और शुरुआत के दिनों में आप उसको अपने हाथों से अपने दिमाग से पूरे करने की कोशिश करें, तभी आप थोड़े दिनों के बाद जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप उसका ऑर्डर दे सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अब जैसे पढ़ाना है, सर क्या स्टेज पे खड़ा ही तो होना है, कैसे कैसे सेलेक्ट हो जाओ और स्टेज पे खड़ा हो जाओ, बस क्या है खेल खत्म है। कुछ भी बात करो ना, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो तो कुछ भी बात कर सकते हैं अपन तो। क्यों रिकॉर्डिंग से लोग डरते क्यों है? क्योंकि वो आउट हो जाएगा, और ये 1 घंटे में सिर्फ एक बात करता है। इज इट क्लियर? लेकिन मेरी तो इतनी इनफाइनाइट बातें हैं, ठीक है। मैं चाहूं तो पूरा 24 घंटे खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं। कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए सुनने की। मुझे मालूम है सब बेहोश हो जाएंगे। इज इट क्लियर? लेकिन कोई बात नहीं। अब हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस शुरू होता है, ठीक है। नाउ स्टेटर एंड रोटर साइड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्लियर और नॉट? स्टेटर इज एट व्हाट फ्रीक्वेंसी?
supply frequency. Is it clear? And rotor is at the slip frequency. Rotor is at the ये S FR S FS और वो कितनी है FS. अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है. अब हम मैथमेटिकल एनालिसिस रोटर साइड पे करते हैं. रोटर करंट आप देखिए सर्किट क्लोज्ड है, रोटर है, ठीक है, और क्लोज्ड है तो करंट बहेगा. कितना बहेगा रोटर करंट? रोटर करंट कितना बहेगा? IR. ये करंट कितना होगा? IR होगा. ठीक है. अब ये सिंपल एक सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है. आप बताइए IR कितना होगा? IR कितना होगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस, नॉट रेजिस्टेंस. टोटल. दिस इज AC सर्किट. दिस इज AC सर्किट. AC सर्किट में सब लेने हैं, इंडक्टेंस भी लेना है और रेजिस्टेंस भी लेना है. और इंडक्टेंस और रिएक्टेंस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? Z, जिसे हम क्या कहते हैं? Z. So in AC circuit, I phasor is given as E phasor upon. Do you agree or not? अरे सभी एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ई फेजर क्या है हमारा यहाँ पर? SER. ये सोर्स है. कहां से दिया? किसने दिया? स्टेटर ने, इंड्यूस करके, जो स्लिप पे डिपेंडेंट है. SER. और टोटल इंपीडेंस क्या है बताओ? RR प्लस JS XL. अरे है कि नहीं है? तो फेजर करंट IR इज इक्वल. अच्छा तो क्वेश्चन लिखो ना. जब आप लिखो, मैंने देखा बोल्ड लेटर से दिखा रखा है. इज इट क्लियर? ये मैंने बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ कि फेजर्स आर डिनोटेड बाय पुटिंग अ बार ओवर इट. बाय पुटिंग अ बार ओवर इट. जब क्वेश्चन लिखो तो IR फेजर इज इक्वल टू हाउ मच? SER फेजर अपॉन RR प्लस JX LR. अरे समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया? L इंटेंशनली लिखा था कि आपको समझ में आए कि L क्या है? लीकेज. क्या है? अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं. देखो मैनिपुलेशन क्यों करते हैं? मतलब मैनिपुलेशन का ये मतलब नहीं है कि कुछ का कुछ कर दिया. प्लस था तो सब्सट्रैक्शन कर दिया है, मल्टीप्लाई था तो डिवीजन कर दिया. क्या है सर? आपने कहा ना मैनिपुलेशन. मैनिपुलेशन का हम नेगेटिव अर्थ लेते हैं. इज इट क्लियर? क्या अर्थ लेते? नेगेटिव अर्थ के सेलेक्ट करना था सनाटी को और कर दिया जॉर्डन को. इज इट क्लियर? इसका लेकिन यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ये है, हम कुछ रीअरेंजमेंट करते हैं फॉर आवर ओन फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि मैथमेटिक्स क्या सरल हो जाए. ठीक है. तो हमने क्या किया कि ऊपर नीचे दोनों क्वांटिटी को S से डिवाइड कर दिया. किससे कर दिया? व्हाट वी हैव डन? डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय S. तो आप देखो कि इसको S से क्या था? SS कट गया. पीछे क्या बचा? ER. इधर पूरा लगाया तो इधर क्या आ गया? RR बाय S. और इधर भी S कट गया. सिंपली क्या बचा? JXL. Are you getting my point? मैथमेटिक्स कहता है ना ऊपर नीचे एक ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यही किया मैंने. डिवाइड बाय S. तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई. अब इससे हम वापस क्या बनाएंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसका वापस इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? तो RS में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. स्टेटर साइड सेम. यहां फर्क पड़ जाएगा. यहां आप देखिए इस सर्किट के अकॉर्डिंग बनाइए. वोल्टेज सोर्स कितना है? कितना है? ऊपर क्या होता है? सोर्स. तो वो कितना हो गया? SER की जगह क्या हो गया? ER. ठीक है. XLR S has removed, but a slip has introduced with the resistance. A slip has been introduced with the resistance, and it became RS by S. ठीक है. तो इसको मुक्त कर दिया S के थ्रू, इसको मुक्त कर दिया और रेजिस्टेंस को कह दिया कि तू वेरी करता है किसके साथ? स्लिप के साथ. और वो भी कैसे? इनवर्सली. वो भी कैसे? हकीकत में कौन करता है प्रैक्टिकली? इंडक्टेंस. कौन करता है? इंडक्टेंस. लेकिन हमने एक से हमारे एनालिसिस को सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने रेजिस्टर के साथ एक स्लिप जोड़ दी और उसको फिक्शिशियस रेजिस्टेंस बना दिया जो वेरी करता है किसके साथ? इनवर्सली वेरी करता है किसके साथ? स्लिप के साथ.
किस लिए किया हमने ये? हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए। आगे ये बहुत आसान हो जाएगा काम, अब आप कहोगे हाँ सर ये आपने सही किया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? अरे इसमें कोई दिक्कत है? ओके, अब हमें मालूम पड़ा, देखिए अब आपको क्या मालूम पड़ रहा है यहां से कि बोथ स्टेटर नाउ एंड रोटर आर एट द करंट आर एट द सेम फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट फ्रीक्वेंसी? दैट इज कॉल्ड स्टेटर फ्रीक्वेंसी। भाई एक्सएल इंडिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया? ईआर भी इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा रोटर जो ये दोनों इंडिपेंडेंट होते ही हमने ये मान लिया कि स्टेटर और रोटर दोनों के कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं? सेम फ्रीक्वेंसी एफआर, सेम फ्रीक्वेंसी एफएस, सॉरी सेम फ्रीक्वेंसी एफएस। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर डिफरेंट होता तो कौन चेंज होता? इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होता और इंडक्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस भी चेंज होता। दोनों को हमने मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट से फ्री कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर ऑपरेटिंग एट द सेम सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो अब है ना रेफरिंग कर देते। ट्रांसफार्मर में किया था, अरे किया था ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर उसको करने के पीछे क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी शुड ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर में तो होता है, अरे ट्रांसफार्मर में होता है कि नहीं होता है? जो प्राइमरी की फ्रीक्वेंसी होती है वही किसकी होती है? क्या अलग हो जाती है? किसी ने ऐसी कोई किताब पढ़ी जिसमें ये कहा गया कि नहीं अलग हो जाती है? ऐसे तो नहीं पढ़ी, ठीक है। तो हमें ट्रांसफार्मर वाला वही रेफरिंग अगर यहां यूटिलाइज करना है तो स्टेटर और रोटर सेम फ्रीक्वेंसी पे होने चाहिए, और वो हमने मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट से कर दिया। तो अब मैं ना रोटर क्वांटिटी को मैं क्या किधर शिफ्ट कर सकता हूं? स्टेटर साइड, या स्टेटर क्वांटिटी को रोटर। तो मैंने ये प्रयास क्या किया दैट आई हैव रेफर्ड ऑल द रोटर क्वांटिटीज ऑन द स्टेटर साइड। तो ये तो सेम रहा RS, XLS, ये शंट ब्रांच RC, WF, and then XM, and now with the referred, so now R is no more R, it is RR dash upon S, RR dash upon S, and XLR is no more now XLR, it is XLR dash। जैसे वहां R2 को प्राइमरी के साइड कर लेते थे तो क्या हो जाता था? R2 dash, और X2 क्या हो जाता था? X2 dash। Is it clear or not? अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बात? ठीक है, तो अब और मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? और मैनिपुलेशन और रीअरेंजमेंट करते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये क्यों? तो एक ही आंसर है, किस लिए? फॉर सिंप्लिसिटी इन मैथमेटिकल एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, ये चीज प्रैक्टिकल नहीं हो रही है, ठीक है। अंदर तो वही हो रहा है, लेकिन ये हमारा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट इसलिए ताकि हम आगे न्यूमेरिकल और एनालिसिस डिजाइन, आपके लिए न्यूमेरिकल है लेकिन साइंटिस्ट जो बैठे हुए इंडस्ट्री में उनके लिए क्या है? डिजाइन। क्या है? डिजाइन। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, इस RR अपॉन S को ही ब्रेक किया। कुछ बुक्स में आप क्या पाएंगे, ठीक है, वो थोड़ा बच्चों को समझने में और आसान होती है, मैंने थोड़ा बहुत आपको हायर साइड पे लेकर कर दिया। कुछ बुक्स क्या करती है कि वो ये रेफरिंग करती नहीं, वो ये रेफर्ड करती नहीं है, और सारा का सारा एनालिसिस किस पे चला देती है? रोटर साइड पे। किससे चला देती है? रोटर साइड पे। वो जो है ना, अभी अब हमारे सारे मैनिपुलेशन क्या चल रहे हैं? RR डैश अपॉन S। तो एक और मैनिपुलेशन है, वो मैनिपुलेशन है, वो रीअरेंजमेंट है कि मैं अब RR डैश नहीं सिर्फ क्या लूंगा? ER फेजर अपॉन RR अपॉन S प्लस J XLR। इस इक्वेशन से मैं चलूंगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे, ये कई बुक्स में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आपको कई बुक्स में मिलेगा, कुछ बुक्स में क्या मिलेगा, नहीं रेफर्ड करके उसको फिर आगे एनालिसिस शुरू किया। तो ये आप पे डिपेंडेंट है, कंसेप्ट सेम है, आगे कंक्लूजन भी सेम आएगा, बट थोड़ा मैथमेटिक्स करने का तरीका है कि रेफर्ड करके लेगा तो सब डैश डैश दिखेंगे आपको। क्या क्या दिखेंगे? डैश डैश। और एक तरीका क्या हो सकता है कि हम सीधा ही क्या लें, क्या लें,
रोटर का ये सर्किट ले लें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो अब जब रोटर का मैं ये सर्किट लूंगा, ठीक है, मैं वो भी आपको पैरेलल बताते रहूं, तो मेरा सर्किट कैसे होगा, ई आर, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आर आर अपॉन एस, और इधर क्या होगा, एक्सएल आर। अरे समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। अब मैं रोटर के इस सर्किट को ब्रेक करूंगा, और ब्रेक भी क्या किसको करूंगा, रेजिस्टेंस को, किसको करूंगा, रेजिस्टेंस को। यहां आपको वो सारी टर्म आर आर डैश में दिखेगी, उधर मैं आपको सिर्फ आर में भी लिखा के दिखूंगा, बात सेम है। अब ब्रेक क्या किया मैंने, इस आर आर एस जो वर्ड है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, दोनों तरीके सही है, मगर एक पर स्थिर रहना, एक पर आपने आधा तो ये चलाया एक्सेल आर डैश करके, और फिर आगे फिर डैश लगाना भूल गए, अब ये तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। या तो इस तरीके से करो, या है दोनों। ये जो मेरा आर आर एस है, इसको मैं लिख सकता हूं आर आर प्लस आर आर 1 माइनस एस अपॉन एस। इसको मैथमेटिकली चेक कर लो, आप सॉल्व करो इसको, क्या ये सही लिखा मैंने, अरे यार नहीं, वो तो तुम कह रहे हो ताकि आगे तो बढ़, टाइम वेस्ट कर रहा है, कलम चला ही नहीं, और बस सही है सर, आगे बढ़ो सर, आप तो क्या है, ठीक है। So it became S RR and this became RR minus S RR, ये कैंसल हो गया, पीछे क्या बचा, अब जाके करेक्ट हो रहा है। सर हम कर लेंगे तो हाथ घिस जाएंगे ना सर, ये पैसे इसलिए थोड़ी दिए हाथ घिसाने के लिए, क्यों, लेकिन ऐसी बात है, कलम से और हाथों से और पांवों से मेहनत करोगे तभी परफेक्ट इंजीनियर बन पाओगे। किसी भी चीज में परफेक्शन के लिए आपका हाथ, पांव, दिमाग, कान, नाक, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन तीनों का जब पूर्ण रूप से उपयोग होगा तभी आप किसी चीज में परफेक्टिज्म ला सकते हैं, वरना अधूरे ज्ञान के साथ, अधूरी चीजें देखकर, अधूरा लिखकर आप हमेशा त्रिशंकु की गिरा, त्रिशंकु मतलब समझते हैं, कहानी सुनी त्रिशंकु की, ठीक है, जो ना स्वर्ग में गया ना नर्क में गया और बीच में लटक के रह गया, तो वो स्थिति तुम्हारी हो जाएगी, ना धरती पे, ना स्वर्ग में, ना नर्क में, त्रिशंकु। इज इट क्लियर? तो वो स्थिति नहीं पैदा हो तो हमें हाथ भी चलाने पड़ेंगे, आंखों से भी देखना पड़ेगा, दिमाग को भी चलाना पड़ेगा, कानों से सुनना पड़ेगा, ठीक है, सांसें भी चलती रहे, इज इट क्लियर, नाक भी चलता रहे, और फिर जो पढ़ा है उसको आपको स्वयं को दोहराना भी है। मैंने आपको तरकीब बता रखी क्या, कि आप जो पढ़ो उसको ऐसे बंद कमरे में दरवाजा बंद कर दो और खुद दोहराओ जैसे किसी को समझा रहे हो, तो वो ज्यादा इंपैक्ट आपका इको आपके दिमाग में आएगा, तो वो सेट होगा, याद आ जाएगी चीजें, अरे यार मैंने वो पढ़ा था। दूसरा, लिखो, आप नई नई पेन लेकर आ जाओ तो फर्स्ट क्लास येलो कलर की, ब्लू कलर की, और सिर्फ बंद करके, इनका कोई मतलब नहीं है। रजिस्टर मैंने कई लड़कों को देखा फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक एक रजिस्टर देता है, कुछ लोग किसी ने गिफ्ट दी हुई थी डायरी, वही लेकर आ जाए। हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर होना चाहिए, लिखो, न्यूमेरिकल करो, तब जाके परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई हैव ब्रेकअप दिस रोटर रेजिस्टेंस इनटू 2, वन इज सेपरेटली आरआर और दूसरा एक आरआर 1 माइनस एस अपॉन एस, सो सेम इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन आरआर डैश फॉर्म, दिस इज व्हाट आरआर डैश, दिस इज सेम एज इट इज, और ये क्या लगा दिया मैंने, एक और रजिस्टर जिसकी वैल्यू कितनी है, आरआर डैश 1 माइनस एस अपॉन एस। अरे समझ में आया कि नहीं है? और हमारा जो भी एक्टिव वर्क कौन करता है,
एक्टिव वर्क के लिए कौन सा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जिम्मेवार होता है? रजिस्टर। कौन होता है? रजिस्टर। ठीक है, ये दूसरे क्या कहलाते हैं? रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? पैसिव नहीं, क्या कहलाते हैं? रिएक्टिव। पैसिव तो तीनों है, कौन? रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। बट फ्रॉम एक्टिव वर्क एंड रिएक्टिव वर्क, द एक्टिव वर्क इज बीइंग अकम्प्लिश्ड बाय, आपकी ट्यूबलाइट जल रही है किसके कारण? रेजिस्टेंस। आपके ये पंखा चल रहा है किसके कारण? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ओनली। इज इट क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं आया? So now we started giving the terminology to this breakup resistance. मैंने बताया एक्टिव वर्क, एक्टिव पावर किसके कारण है? रेजिस्टेंस के कारण। तो अब अपने पास कितने रेजिस्टेंस आ गए? कितने आ गए? 3 है हमारे पास। एक आर डैश अपॉन एस, एक सिर्फ आर डैश, और तीसरा आर डैश 1 माइनस अपॉन एस। इज इट क्लियर? अब इन तीनों के नाम देंगे कि ये तीनों बेसिकली कर क्या रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, पहला सबसे पहला ये आया था, ये वर्ड आर डैश अपॉन एस। या इस सर्किट में क्या आया था? सिर्फ आर अपॉन एस। आर आया था कि नहीं आया था? ठीक है, तो अब ये क्या कहलाता है? एयर गैप पावर कंपोनेंट। क्या कहलाता है? एयर गैप पावर कंपोनेंट। ठीक है, भाई पावर आएगी कहां से? देखो यहां कुछ चमत्कार नहीं है। जब ट्रांसफार्मर पहली बार इजाद हुआ तो लोगों को लगा और यार सप्लाई तो इधर दी और झटका उधर आ रहा है सेकेंडरी साइड, जबकि बीच में कोई कनेक्शन है नहीं। कोई भी आता हाथ लगा और हाँ यार है झटका है। तो उस समय क्या लगा लोगों को? अरे यार चमत्कार हो गया, और देखो जादू मंत्र कुछ ना कुछ है ना, फैराडे मंत्र कर रहा है और उधर दूसरी साइड बिजली आ रही है। ऐसा ही तो होता है। मान लो मेरे 100 रुपए लेकर तुम्हारी जेब में आ जाए, चमत्कार, नमस्कार है, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी बबूत निकाल के और यार हाथ में कुछ ले बेटी तेरा टॉपर इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो बेसिकली पावर किसको दी हमने? स्टेटर को। किसको दी? स्टेटर को। स्टेटर ने वो पावर लेकर कुछ अपने में खर्च कर दी लॉस में, फिर वो कहां दी? वो किसको दी? रोटर को नहीं दी अभी तक, एयर गैप में। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दी किस फॉर्म में? एयर गैप पावर। तो वो पावर क्या कहलाएगी भाई? वो पावर ही तो ट्रांसफर हुई है। तो ऐसा थोड़ी है कि सप्लाई पे कुछ लगाया नहीं, चल रोटर चल। अब तो मैंने जब चल, मैं कहा ना, दवे सर ने कहा था तेरा काम है चलना। ऐसे थोड़ी है, हमें इनपुट देना पड़ेगा, उस इनपुट से ही हमारा आउटपुट। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो एयर गैप में पावर आई, उसको हमने क्या कहा? एयर गैप कंपोनेंट। और वो वैल्यू कितनी होगी? आर डैश अपॉन एस। क्लियर? जब हमने इसको ब्रेकअप किया, ब्रेकअप किसमें कर दिया? एक तो आर डैश और दूसरा आर डैश अपॉन 1 माइनस एस अपॉन एस। अरे किया कि नहीं किया? तो इस एयर गैप पावर में 2 कंपोनेंट शामिल है। एयर गैप पावर में 2 कंपोनेंट शामिल है, ये आप देख रहे हैं यहां पर। दिस वन कंपोनेंट इज दिस एंड सेकंड कंपोनेंट इज दिस। पहला कंपोनेंट किस काम में है? एयर गैप पावर ने उसमें से कुछ पावर को इस्तेमाल किया रोटर कॉपर लॉस। किसमें? आर डैश। केवल क्या है या उधर क्या है? आर। आर किस काम में आएगा? कॉपर लॉस में। वाइंडिंग है, लॉस तो करेगी। वाइंडिंग मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बिना लॉस के मानेगा नहीं। हीट तो वो देगा ही, ठीक है, गर्मी तो वो देगा ही। आपके बल्ब के हाथ लगा के देखना 1 घंटे बाद चलने के बाद, स्विच ऑफ कर दोगे तो भी हाथ लगा के देखना। स्टूल से आप ना गिरो तो मेरा नाम बदल देना, गर्म लो और वो गिरा। यू गॉट माई पॉइंट? इज इट क्लियर? तो वो उसने भी लॉस किया किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट, क्योंकि उस एयर गैप के कारण रोटर घूमने लगा है, तो एक तो उसने कॉपर लॉस में ले लिया, और दूसरा किसमें? मैकेनिकल पावर आउटपुट, जो कितनी है? आर डैश 1 माइनस एस अपॉन एस। So the air gap component has 2 components. One is rotor copper loss component, and another is mechanical output power component. ये मैकेनिकल पावर मिली अभी तक कहां पर? रोटर पर। अभी इसमें मैं और बताऊंगा
इसमें भी तो लॉस होंगे, रोटर घूम रहा है, रोटर कौन सा अपना सगा है, वो घूमेगा, उसमें भी फ्रिक्शन होंगे, उसमें भी विंडेज लॉस होंगे, तो उसमें से वो माइनस करके बाहर कुछ मिलेगा आपको शाफ्ट पे, वो क्या होगा, नेट शाफ्ट पावर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पूरा एक डायग्राम में आपको बताऊंगा कि कैसे इनपुट में किसने दी, सप्लाई किसको दिया आपने, स्टेटर को, स्टेटर ने कुछ तंत्र मंत्र किया और किसको दी, एयर गैप को, एयर गैप ने किसको दिया, रोटर को, रोटर भी कम चालाक नहीं तुम्हारी तरह, कुछ अपना हिस्सा किसको हम, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कंपोनेंट, उसके लिए तो वो है, मैं अगर घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, इज इट क्लियर, तो अपना कुछ लॉस लेगा। अच्छा फिर चाहिए ये लो, बाकी का पावर, रोटर को घूम, रोटर घूमने लगा, अब रोटर को घूमने कहां आना चाहिए, शाफ्ट पे, लोड कहां कनेक्ट करोगे आप, शाफ्ट पे, तो रोटर कहेगा अच्छा मैं घूम रहा हूं, मेरे को इतनी हवा लग रही है, इतने कर रहा हूं, वो लॉस कहां जाएगा, है फ्रिक्शन हो रहा है, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन हो रहा है, वो लॉस कौन देगा, वो मैं रख लूंगा बाद में, अब तेरे शाफ्ट पे जितना लेना ले। तो आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो शाफ्ट जो पावर होगी वो कब आएगी, एयर गैप पावर, जो मैकेनिकल पावर कंपोनेंट है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा ये हमने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन क्यों किया था, आपको समझाने के लिए कि भैया ये पावर जो आ रही है स्टेटर से यहां तक, इसके बीच में इसने क्या रास्ता तय किया और मैथमेटिकली जस्टिफाइड कर दिया कि एक कॉपर लॉस कंपोनेंट होता है और एक मैकेनिकल आउटपुट पावर होता है, वो कितना होता है, RR-1, who is how much resistance is contributing for mechanical power output, it is RR-1 minus S upon S। अरे समझ में आया कि नहीं है, and therefore now the equivalent circuit, इसको हमने क्या किया, शंट पाथ को फिर अप्रोक्सीमेट करके इधर ले आए फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस, और ये ला भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल बैठे बैठे कहते, मैथमेटिकली इट हैज बीन प्रूव्ड दैट यू कैन शिफ्ट द ब्रांच, ओके, एंड देयरफॉर वी विल गेट RS XLS RR डैश XLR और इधर RR-1 minus S upon S, this is core loss, this is copper loss component and this is mechanical output power। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये सर्किट, so tomorrow, today I am leaving here only, okay, that what we have done today, we have put forward before you the equivalent circuit of the diagram of the induction motor, okay, and also we have moved in a step by step, first of all open circuited, then short circuited, then some mathematical rearrangement has been done, and ultimately we come to the conclusion that whatever the air gap power is obtained is being divided into two forms, one is the rotor copper loss and another is the मैकेनिकल आउटपुट, और हम मैकेनिकल आउटपुट पे ही ज्यादा इंटरेस्टेड है मोटर के संदर्भ में। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो दैट्स ऑल फॉर